I think only these much of participants can join the group. Now today we'll discuss. So we are discussing over here the text reading NEET inorganic chemistry group 15th elements नाइट्रोजन फैमिली. तो आज हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं. इस लेक्चर में आज डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. डिस्कस इन दिस लेक्चर टुडे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. सो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. Oxides of nitrogen. As we know that nitrogen forms different types of oxides. The oxides are N2O, dinitrogen oxide. This is called dinitrogen oxide. So similarly, we have NO over here. This is called nitric oxide. We have N2O3. We have N2O3. This is called dinitrogen trioxide. We have NO2. One more oxide is NO2 and one more oxide is N2O4. N2O4 इसी को मैं लिखूंगा. This will be written as N2O4 and one more is N2O5. So these are different types of oxides of nitrogen. Now see, we have to discuss first their oxidation states. Now in this case, oxidation state is +1. How you determine oxidation state? Take the oxidation state of this nitrogen X. Since there are two nitrogen atoms, take it twice. Oxidation state of oxygen is -2. 2x minus 2 is equal to 0. Therefore, 2x is equal to 2, which implies x is equal to 2 by 2. That means 1. So over here we have oxidation state of nitrogen +1. In this case, oxidation state will be +2. In this case, oxidation state will be +3. In these cases, oxidation state will be +4. And in this case, oxidation state of nitrogen is +5. Now see, if we count the number of electrons, in this case, dinitrogen oxide, we have two nitrogen atoms. So the total number of electrons will be, valence electrons of nitrogen is 5. So total will be 2 into 5. Total number of electrons will be 2 into 5. 5 from each nitrogen atom, plus oxygen has 6 valence electrons. 2 into 5 plus 6, that means 10 plus 6, that is 16 electrons. That's even number. So the number of electrons, valence electrons, TVE इसको हम बोलते हैं, इसको हम TVE बोलते हैं, total valence electron count. Total valence electron count. So total valence electron count over here is total valence electron count. For here in this oxide it is 16. इस oxide की बात करेंगे, 5 from this nitrogen, 6 from oxygen. So total valence electron count is 5 plus 6, that's 11. So the number of total valence electrons in NO is odd. Number of total electrons in this compound, it is odd. So in this case we have odd number of total electrons. Now in this case we have two nitrogen atoms, therefore 5 from 1, that is 2 into 5. 3 oxygen atoms plus 3 into 6 from 1 oxygen atom. These are the valence electrons I am counting. 2 5s are 10 plus 3 6s are 18. That means 18 plus 10 is 28. That's again even. तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं. दिस इज डायमेरिक फॉर्म. यहाँ पे मैंने इसको डबल किया, N2 ऑक्सीजन डबल O4. इट्स कॉल्ड डायमेरिक फॉर्म. इसको हम अभी देखेंगे. Now nitrogen में 5 valence electron, oxygen में 6, 2 into 6. 6 2s are 12. 12 plus 5 is equal to 7. 12 plus 5 is equal to 17 electrons. तो इसमें 17 electrons हैं. This is again odd. तो यहाँ पे भी odd number of electrons हैं. So we have odd number of electrons in this case. Now इसकी बात करेंगे, यहाँ पे nitrogen 2 means 2 into 5 plus 5 oxygen atoms, 5 into 6 on oxygen atom. 2 5s are 10, 5 6 are 30, means we have 40 valence electrons. So this is again even.
Now see, जिस ऑक्साइड में odd number of electrons होंगे, that oxide will be paramagnetic in nature. Means NO, यहाँ पे एक important conclusion निकलता है, NO and NO2 they are paramagnetic in nature. These two are paramagnetic. They are paramagnetic in nature. Paramagnetic, why? Because they contain odd electrons. Odd electron बोले तो they contain unpaired electrons. तो इनमें unpaired electron होता है. That's why these two are paramagnetic in nature. So पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, which among the following oxides of nitrogen is paramagnetic in nature? Now see, जो भी हमारे पास paramagnetic होता है, for example NO radical, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक NO मॉलिक्यूल और जुड़ेगा इसके साथ, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइमर. सो कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा N2O2. दिस कंपाउंड इज एक्चुअली डाइमर ऑफ NO. because they contain odd electrons they form dimer. This is dimer. Similarly हमारे पास NO2 है, इसके पास odd इलेक्ट्रॉन है, can combine with one more molecule of NO2 having odd electron, it will result in the formation of dimer N2O4. So these are actually dimeric. तो यहाँ तक अब हमने देखा, यहाँ तक एक क्वेश्चन बनता है, which oxide of nitrogen is paramagnetic, or which contain odd electron, or which contain unpaired electron. So we have seen the answer over here. One is NO nitrous oxide, जिसको आप laughing gas भी कहते हैं, and one more is NO2, जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं. Since they contain unpaired electron, जो जिस भी कंपाउंड के पास unpaired electron होता है, जिस भी कंपाउंड के पास unpaired electron होता है, that appears colored. तो इस ये भी कलर्ड होगा, ये भी कलर्ड होगा. बाकी तीन ऑक्साइड्स, ये वाला ऑक्साइड, ये वाला ऑक्साइड, बाकी तीन ऑक्साइड, दिस वन, दिस ऑक्साइड, और हमारे पास ये ऑक्साइड और ये ऑक्साइड, दीज आर कलरलेस. दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस. तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, जिस भी ऑक्साइड के पास odd electrons होंगे, that's colored. So these two oxides they are colored. तो हमारे पास कौन कौन सा ऑक्साइड कलर्ड है? NO and NO2 they are colored in nature. Now यहाँ पे आपको इनका कलर याद रखना पड़ेगा. So NO and NO2. तो यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन भी है, जो NO है, although it contains odd electrons, it has been found to be, still it has been found to be, it has been found to be colorless. Although it contains odd electrons, still it has been found to be colorless. So this is the exception over here. Now why it is colorless, we will discuss it. अब मैं ये exception आपको बताऊंगा, ये क्यों colorless है. It should have been colored. Now why this is colorless, अब मैं इसको आपको explain करूंगा why this is colorless. तो यहाँ पे NO2 जो है it is colored. NO2 जो है it is colored and इसका कलर है brown. उसका कलर आपको याद रखना है, NO2 का कलर ब्राउन है. तो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास N2O3 है, इज आल्सो कलर्ड इन नेचर, इज आल्सो कलर्ड, और इसका कलर ब्लू है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इज NO कलर्ड और कलरलेस. तो NO कलर्ड है या कलरलेस है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर. So this will be the most important question. So question क्या होगा यहाँ पे most important, NO colored है या colorless है. अगर हम directly देखेंगे NO compound को, तो NO में basically there are 5 plus 6 electrons, that's 11 electrons, means there is odd electron. Odd electron means it should have been colored. Odd electron. Now why you are joining 2 or 3 times? Odd electron means it should have unpaired electron. Now, if there is unpaired electron, where does that reside? That unpaired electron does not lead to its color formation. Still, this is not colored in nature.
Still this is colorless although it contains, यहाँ पे आप देखो स्टार मार्क करके, although it contains unpaired electron, although unpaired electron is present, but still it is colorless, but still it is colorless. Now आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन कलरलेस है। Now, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसा हमने 11th बॉन्डिंग में पढ़ा था, एमओटी, एमओटी इस चीज को एक्सप्लेन करेगा। तो एमओटी में हमें एक्चुअली क्या हम लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरो, वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बिलो नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन से पहले हमें आता था यहाँ पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। उसके बाद आता था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड। उसके बाद आता था पाई स्टार टू पी एक्स, उसके बाद पाई स्टार टू पी वाई। उसके बाद आता था हमारा यहाँ पे पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से दे सकते हो इसको। 5 plus 6 that's electron, 2 2 2 and 2 that's 2 plus 2 plus 2 plus 2 that's 8 electrons। तो यहाँ पे आप 9 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पे आप 10 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पे आप 11 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये जो अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में रिजाइड करता है, तो विच ऑर्बिटल दिस अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन डज रिजाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मे बी आस्क्ड इन NO द अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन resides in which orbital। NO में अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रिजाइड करता है, so it resides in pi to py orbital। so it resides in pi to, let me discuss it in more detail। हाँ सी, ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट की, मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके काउंट करूंगा। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 8। 8 plus 7 is equal to 15। now 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 2 12 plus 2 we have for here plus 2, that is 14, 15 and 16। see we have 15 and 16। 2 plus 2 4 6 8 10 12 14 15 16। now we have 16 electrons over here। अगर मैं इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करूंगा तो मेरा अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड करता है या पाई स्टार टू पी एक्स ऑर्बिटल में या पाई स्टार टू पी वाई ऑर्बिटल में। सो द इलेक्ट्रॉन, अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन pi star 2px orbital or in pi star 2py orbital। so from this यहाँ पे हम कह सकते हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। इसका स्पिन अगर प्लस हाफ है, इसका स्पिन भी प्लस हाफ है, मींस नेट स्पिन ओवर हियर वी हैव अ नेट स्पिन। तो अगर एनर्जी सेम है तो वी कैन फिल अप दीज ऑर्बिटल्स लाइक दिस। हम यहाँ पे इनको ऐसे फिल कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, ये जो हमारा कंपाउंड है, बिकॉज ऑफ द सिमिलर एनर्जी ओवर हियर, because of similar energy it becomes an exception और इसका it becomes colorless over here। तो next में डिस्कस करते हैं structure of these oxides। let us discuss structure of these oxides। so discuss structure of these oxides, not structure, structure of these oxides। now we have 5 types of oxides, let's explain their structure। तो हमारे पास पहला ऑक्साइड है N2O। we have N2O। we have one type of oxide, that's N2O। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करेंगे तो हम इसकी स्ट्रक्चर कहाँ से बना सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम इसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली आपने सीखा है केमिकल बॉन्डिंग में। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सी यो जो हमारा N2O है, इट इज लीनियर मॉलिक्यूल, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल। बाय लीनियर मॉलिक्यूल वी मीन दैट इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट शुड बी 180 इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए। मीन्स द स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस। ये हमारे पास N है, ये हमारे पास O है। अब आप यहाँ से इसको लेविस ऑप्टिट्यूड रूल फॉलो कर सकते हो, या मैं डायरेक्टली लिखूंगा दिस इज MnO। दिस इज द स्ट्रक्चर। एक्चुअली यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर हमें मिलती है ना। अब इस चीज को आप ऑप्टिट्यूड रूल से एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज सिंगल बॉन्ड O। तो नाइट्रोजन जब भी 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, यहाँ पे 2, 4, 6, 8। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगी। सो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर, इट हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर है। दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ N2O। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करेंगे तो N बॉन्ड लेंथ एंड NO बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ या ये वाली बॉन्ड लेंथ? ना आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे ना? NO बॉन्ड लेंथ को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देयरफॉर ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड जो है, इट इज बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट दिस बॉन्ड इज बिटवीन टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दैट्स नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो ओवरलैप होगा दैट विल बी स्ट्रांग। ये बॉन्ड जो होगा दिस विल बी स्ट्रांग बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड मींस यहाँ की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी। दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज 113 एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज 119। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ना, दिस इज आवर N2O, this bond is bond A, this bond is bond B, bond length of A is greater than B, bond length of B is greater than A, bond length of A is equal to B, or you can say anything about this, none of these. So over here we can say that bond length of NO is greater than that of NN. This bond is short. Why? Because of effective overlap between two similar atoms. उसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑक्साइड, दैट इज सेकंड ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, दैट्स NO। तो NO की स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली दिस NO इट कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर it is it should have been colored, but it is colorless. But it is not colored, it is colorless. Now why it is colorless? Because this NO जो हमारे पास odd electron वाला है, इसमें 11 electrons है, valence electrons, it does not exist like this, it forms dimer into O2. Now once it forms dimer, you can multiply this with 2, this 11 with 2, and you can get 22 electrons. Now in the dimeric state, it is diamagnetic. In the dimeric state, it is diamagnetic. Now it is diamagnetic. It is diamagnetic and it is colorless. This is how NO is colorless. Now this is the reason why NO is colorless, because it exists in the form of dimer which does not contain odd electron. Since there is no odd electron, therefore it is colorless. तो ये हमारे पास NO है, इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इट्स आल्सो लीनियर इन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यू नो दैट ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, यहाँ से बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज वन मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज वन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Now what happens over here, ये लोन पेयर यहाँ से एक डबल बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी N डबल बॉन्ड O लोन पेयर। तो यहाँ से अभी एक लोन पेयर है, तो ये वाली स्ट्रक्चर हमें यहाँ से मिल सकती है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन गेट ओवर हियर। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। दिस कैन बी स्ट्रक्चर। NO बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे इसमें, तो NO बॉन्ड लेंथ इन दिस केस इज 115 pm, मींस इट्स आल्सो लीनियर इन स्ट्रक्चर।
The first two oxides, oxide in +1 oxidation state and +2 oxidation state. They are what? They are linear in structure. They have linear structure. उसके बाद डिस्कस करेंगे वन मोर ऑक्साइड दैट्स N2O3 which is important from competitive exam point of view. N2O3 को डिस्कस करेंगे. उसके बाद डिस्कस करेंगे N2O3. We'll discuss N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इट इज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन व्हिच कंटेन्स N bond. Now this is important. The oxide of nitrogen that contains N bond. Now हमारे पास दो नाइट्रोजन आ गए, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से दो ऑक्सीजन, और यहाँ से कहीं से भी आप तीसरा ऑक्सीजन लगा सकते हो. दिस इज ऑक्सीजन. सी बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे. आपको बॉन्ड लेंथ वैसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, दिस बॉन्ड एंगल हैज बीन फाउंड टू बी बाय 130 डिग्री. दीज आर आवर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज and this bond angle has been found to be 105 degree. तो बॉन्ड लेंथ की बात अगर करेंगे, दिस बॉन्ड लेंथ इज 114, दिस बॉन्ड लेंथ इज 186 and this bond length is 117. This bond length is 117. ये bond length 117 है. You need not to remember bond length over here. इस कंपाउंड में आपको एक ही चीज याद रखनी है, the oxide which contains N bond. This is the oxide which contains N bond. इस पे भी एक क्वेश्चन भी बनाएंगे. The oxide which contains N bond is N2O3. One more is there. इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. One more fourth oxide is NO2. तो NO2 को अगर देखेंगे, आप हाइब्रिडाइजेशन करके भी इसको निकाल सकते हो. नॉन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये डाइवेलेंट एटम्स है, लाइक दैट आप इसको निकाल सकते हो. नाउ NO2 की स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2. इट इज अ बेंट शेप. स्ट्रक्चर बेंट होती है और वी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है. इट इज अ वी शेप्ड स्ट्रक्चर और बेंट स्ट्रक्चर, और इसी को आप एंगुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं. इसको आप एंगुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं. यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज 134. ना इन सब चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है. उस चीज को हमें एक बार फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. बट मैंने कहा था ये NO2 जो है, इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइमर N2O4. If it exists in the form of the dimer, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. एक हमारा ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है. इस तरह की स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है. या हमारे पास दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है. दिस इज N2O4, N2O4, and this is oxygen, this is oxygen. But this structure has not been observed by X-ray crystallography. X-ray crystallography एक टेक्निक होता है जिससे हम कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं. X-ray crystallography has determined this type of structure present in the molecule. So this type of structure has been observed by X-ray crystallography. This type of structure has been observed by X-ray crystallography. This is the structure of dimer of NO2. The structure of dimer of NO2. It also contains N bond, but only in dimeric form. When you are given N2O4 in option, then it contains N bond. If you are given NO2, then there is no N bond. Now number 5th is, last one is N2O5. Now we have N2O5. This oxide of nitrogen is very important. This oxide of nitrogen is very important. This is very important, because this is the only oxide of nitrogen which contains NON linkage. It contains NON linkage. Now see, यहाँ पे अब oxygen होगा, oxygen होगा, oxygen होगा, oxygen होगा. This is the structure. So what type of questions can be asked from this concept? इस concept से कौन से questions आप पूछे जा सकते हैं? Let us see.
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. क्वेश्चंस may be asked. Now let us see what type of questions may be asked. Now let us try to summarize things and see what are the questions that may be asked over here. So the questions that may be asked over here are, number first question. Which is odd electron oxide? Odd electron oxide. Odd electron oxide कौन है? हमारे पास N2O है, NO है, NO2 है, N2O3 है, N2O5 है. This is question number 1. Now question number 2 will be the oxide which contains odd electron, but is colorless. Yes. तो यहाँ पे ऑप्शन हो गए NO, N2O, N2O3, NO2. Now one more important question. The oxide which contains NN bond. NN bond किसमें होगा? ऑप्शंस होंगे NO, ऑप्शंस होंगे N2O3, N2O, N2O और ऑप्शन यहाँ पे होगा N2O5. Now one more type of question. The oxide which contains NON bond. So this is one more question which can be framed over here. So one more question that can be framed over here. The bent oxide of nitrogen is. तो यहाँ पे बनाऊंगा NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O4. These are the common types of the questions that may be asked from this concept. So these are basically common types of the questions that may be asked from this concept. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखना है, ब्लू कलर्ड ऑक्साइड कौन है? ब्लू कलर्ड ऑक्साइड कौन है? ब्लू सॉलिड एग्जिस्ट करता है. नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है विच एग्जिस्ट एज अ ब्लू सॉलिड? इसका आंसर है N2O3. यहीं पे आप याद रखो, इस बात को आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखो. और ब्राउन कलर्ड ऑक्साइड कौन सा है? NO2. इट इज ब्राउन कलर्ड ऑक्साइड. These two are colored, others are colorless. So this becomes very important concept over here. तो यहाँ से इसमें क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड को. हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमारे टेक्स्ट में है फास्फोरस. तो फास्फोरस एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम फास्फोरस को डिस्कस करेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं इसको वॉश करूंगा. ओके. नाउ नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस. डिस्कस फास्फोरस और हियर. नेक्स्ट जो हमने नाइट्रोजन को खत्म किया, अब फास्फोरस को डिस्कस करेंगे. बी ब्लॉक को मैं 12 और 13 लेक्चर्स में खत्म करूंगा. अगर आप लोग बियर करोगे, आप एक एक घंटा क्लास ले सकते हो. फास्फोरस. उसके बाद मैं डी एंड एफ को 5-6 लेक्चर्स में खत्म कर सकता हूँ, 8 लेक्चर्स मैक्सिमम. उसके बाद कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें टाइम लगेगा. अगर हम उसमें भी एक एक घंटे का क्लास लेंगे तो वो भी 17 और 18 लेक्चर्स में होगा ना. फास्फोरस. तो फास्फोरस जो हमारे पास है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है. पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, उसको हमने डिस्कस किया.
phosphorus exists in the form of P4 solid. अब P4 बोलिए तो हमारे पास phosphorus है. There are 4 phosphorus atoms. Now these phosphorus atoms are joined like this. This is the structure of P4. तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो phosphorus कितने बॉन्ड बनाएगा. उसके वैलेंस शेल में 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. When these electrons take part in bond formation, 3 bonds are formed, 1 2 3. Therefore यहाँ पे एक lone pair रहेगा, यहाँ पे एक lone pair, यहाँ पे एक lone pair, यहाँ पे एक lone pair. This is the structure of P4. तो P4 एक्चुअली जो फास्फोरस है, P4 exist होता है in allotropic form. P4 exists actually in different allotropic form. P4 actually exists in different allotropic forms. The allotropic forms are, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं allotropes of phosphorus. Important है from board exams as well as competitive exams. Allotropes of phosphorus यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. Phosphorus exists typically in 3 allotropic forms. यहाँ पे phosphorus की 3 allotropic forms होते हैं. एक होता है हमारा white phosphorus, एक होता है हमारा red phosphorus and one more is black phosphorus. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इनमें से आ सकता है, which is most stable allotrope of phosphorus. तो ब्लैक फास्फोरस आप यहीं पे याद रखो, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ब्लैक फास्फोरस इज thermodynamically most stable allotrope of phosphorus. It is thermodynamically most stable allotrope of phosphorus. This thing is very important. Now why and how we'll see allotrope of phosphorus. तो डिस्कस करते हैं पहले white phosphorus. Now white phosphorus जो हमारा होता है, it consists of P4 units. White phosphorus consists of P4 tetrahedral units. It consists of P4 tetrahedron. P4 tetrahedron means we have phosphorus over here, then we have phosphorus over here, the phosphorus over here, phosphorus, then we have phosphorus, then we have phosphorus, and then we have this bond. And these two phosphorus are joined. Now you can see over here the number of pp bonds. This is one pp bond, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth. Means there are 6 pp bonds. The question that's usually asked in competitive exam. There are 6 pp bonds. अगर आप इस bond angle को देखोगे, this bond angle is 60 degree. This bond angle is 60 degree. मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत कम है. मीन्स देयर इज एंगल स्ट्रेंथ. इन व्हाइट फास्फोरस देयर इज एंगल स्ट्रेंथ. Now whenever there is strain in the molecule wishes to relieve that strain. Therefore अगर इस molecule में strain है, it wishes to relieve it, therefore it will be unstable. This compound will be unstable because of angle strain. It's unstable because of angle strain. तो अभी इसका टाइमिंग खत्म होने जा रहा है. यू कैन ज्वाइन अगेन देन. दिस इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेंथ. अगर ये अनस्टेबल है, इट विल बी हाईली रिएक्टिव. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस. इफ यू विश टू प्रिपेयर दिस, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे. लेट अस सी इट्स प्रिपरेशन. तो इसको हम P4 से प्रिपेयर करते हैं. अच्छा, इसकी रिएक्शन हाइड्रल यूनिट्स, दैट्स द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. इसमें एंगल स्ट्रेन होता है. व्हाई? बिकॉज इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है दैट 60 डिग्री. मींस ये एंगल अंडर स्ट्रेन होता है. अब कोई भी कंपाउंड अगर अंडर स्ट्रेन होगा, दैट कंपाउंड विशेस टू रिलीव दैट स्ट्रेन. तो इस स्ट्रेन को कम करने के लिए यहाँ पे ये ज्यादा रिएक्टिव बनता है. दैट मीन्स इट्स अनस्टेबल. So it becomes highly reactive over here. Then this compound becomes highly reactive over here. This compound is highly reactive.
अब व्हाइट फास्फोरस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। Discussion of some of the important properties of white phosphorus. Now let us see some important properties of white phosphorus. अगर आप white phosphorus P4 को हीट करोगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ ट्रीट करोगे एंड विद वाटर मींस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे NaOH with water, that's aqueous sodium hydroxide, you'll get a compound known as PH3. PH3 is known as phosphine. इस कंपाउंड को हमें अलग से डिटेल में डिस्कस करना है। PH3 is known as phosphine, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक दो इंपॉर्टेंट यूजेस होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम वहीं पे देखेंगे। We'll see that means phosphine, we get phosphine over here plus we get a side product. Now what will be that side product, हम यहाँ पे देखेंगे। now phosphine बनाने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, therefore हम इस वाटर को यहाँ पे 3 टाइम्स करेंगे, so we get phosphine। यहाँ से हमें 6 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हमने यूटिलाइज की, 6 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से हैं, बट हमने 6 में से 3 हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया, 3 हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया और एक फास्फोरस को यूटिलाइज किया, हमने निकाला यहाँ से कंपाउंड PH3। अब नेक्स्ट में हमारे पास 3 फास्फोरस बचे हैं जो सोडियम के साथ निकलते हैं, 3 फास्फोरस के लिए हमें 3 सोडियम की जरूरत है, therefore we get a compound NaH2PO2, NaH2PO2, we get a compound NaH2PO2। We get a compound NaH2PO2, this type of compound। अब इस कंपाउंड को बैलेंस करो, we need 3 sodium ions, therefore 3 times over here, हम यहाँ इसको 3 times लिखेंगे, we'll write it 3 times, तो हमने यहाँ पे इसको 3 times लिखा। now the reaction got balanced, आप यहाँ से देख सकते हो, we have 3 sodium ions over here and we have 3 sodium over here, hydrogen हमारे पास 3 2s are 6 and 6 3 are 9, और here we have hydrogen 3 hydrogen 3 2s are 6 and 6 plus 3 they are 9, therefore the reaction is balanced। तो व्हाइट फास्फोरस जो है, व्हाइट फास्फोरस अगर हम इसको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी गेट फास्फीन। तो दिस बिकम्स अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे फास्फीन की प्रिपरेशन, तो दिस बिकम्स वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन। तो अगर हम व्हाइट फास्फोरस को रिएक्ट करेंगे विद ऑक्सीजन, अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे विद ऑक्सीजन, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, P4 को अगर हम रिएक्शन करेंगे विद ऑक्सीजन, then an oxide of phosphorus is formed, that's called P4O10। we'll discuss this P4O10 in the next separate topic where we'll discuss the structure of this P4O10। तो इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ से आपको 4-5 टाइम्स ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको 5 टाइम्स ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। now see this is about white phosphorus। now white phosphorus के बाद हमारा दूसरा एलोट्रॉप होता है, that's red phosphorus, that's red phosphorus। तो रेड फास्फोरस का डिस्कशन करते हैं। रेड फास्फोरस जो हमारा होता है, इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस। अगर आप व्हाइट फास्फोरस P4 को लेते हैं, अगर आप इस white P4 को हीट करते हो, इफ यू हीट दिस white P4, अगर आप इसको हीट करते हो एट 573 केल्विन, 573 केल्विन, सिंस दिस इज अनस्टेबल, ये हमारा फास्फोरस अनस्टेबल है,
therefore it will form a stable one. That's why यहाँ से इसको हीट करके stable phosphorus बनता है, तो यहाँ से हमें red phosphorus मिलता है. We get a red phosphorus over here. यहाँ से हमें red phosphorus मिलता है, red phosphorus. So red phosphorus, it clearly indicates that red phosphorus is more stable than white phosphorus. Because अगर आप white phosphorus को heat करते हो तो वहां से red phosphorus मिलता है, indicating that red phosphorus is more stable than that of white phosphorus. It is because of this reason red phosphorus जो हमारा होता है, we can preserve it for several days. यहाँ पे हमें हाई प्रेशर की भी जरूरत पड़ती है, मींस अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अगर हम इसको हीट करते हैं, वी गेट दिस टाइप ऑफ फास्फोरस, दैट्स रेड फास्फोरस. तो रेड फास्फोरस जो है, आरपी में इसको लिखूंगा, रेड फास्फोरस इज मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस. रेड फास्फोरस जो है, रेड फास्फोरस इट इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस. रेड फास्फोरस में एंगल स्ट्रेन की बात करेंगे, कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाइट फास्फोरस. दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्लैक फास्फोरस. अगर आप रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो आपको फास्फोरस के जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं उनको आपको ज्वाइन करना है. दिस इज पी, दिस इज पी, दिस इज टेट्राहेड्रॉन, तो दिस इज वन मोर टेट्राहेड्रॉन, दिस इज वन मोर टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पे एक और टेट्राहेड्रॉन है, दिस इज वन मोर टेट्राहेड्रॉन, दिस इज वन मोर टेट्राहेड्रॉन. सी इन टेट्राहेड्रॉन को ज्वाइन करके हमें मिलता है रेड फास्फोरस. तो यहाँ से एक और हो सकता है, यहाँ से एक और हो सकता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस. कभी क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट आता है, वो स्ट्रक्चर दो तीन देगा और आपको बोलेगा विच वन इज रेड फास्फोरस एंड विच वन इज व्हाइट फास्फोरस. उसके बाद डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप ऑफ फास्फोरस जो हमारे पास है दैट्स ब्लैक फास्फोरस. तो ब्लैक फास्फोरस को डिस्कस करते हैं. जैसे कि मैंने अभी कहा था, जो ब्लैक फास्फोरस है, जिस थर्मोडायनामिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस. ब्लैक फास्फोरस को अगर डिस्कस करेंगे, ब्लैक फास्फोरस मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप. This is most stable allotrope of phosphorus. This point is in itself is very important for competitive exams. ये हमारे पास एग्जिस्ट होता है इन टू फॉर्म, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक. It exists in two forms, that's alpha black and beta black. अगर हम रेड फास्फोरस को हीट करते हैं, if we heat the red phosphorus at higher temperature 803 Kelvin, we get black phosphorus. तो हमें यहाँ से ब्लैक फास्फोरस मिलता है. रेड फास्फोरस को हीट करने पर हमें यहाँ पे ब्लैक फास्फोरस मिलता है. नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूंगा, देन ब्लैक फास्फोरस विल बी मोर स्टेबल देन रेड फास्फोरस विच विल बी मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस. नाउ व्हाई? बिकॉज अगर आप इसको हीट करोगे तो 573 केल्विन तो आपका रेड बनता है. अगर रेड को हीट करोगे तो 803 केल्विन तो आपका ब्लैक फास्फोरस बनता है. Now this is important thing. This thing is important over here. उसके बाद हमने फास्फोरस के एलोट्रॉप्स को डिस्कस किया, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉस्फीन को. We'll discuss phosphine. The next topic is phosphine. Now what is phosphine? Phosphine is nothing, it is hydride of phosphorus. Hydride of phosphorus. Phosphine is hydride of phosphorus and its structure is PH3. Now all hydrides of this group, they form compounds of the type PH3
Therefore, hydrides of the type PH3, therefore phosphorus forms PH3. तो अगर हम PH3 की बात करेंगे, हमें इसमें डिस्कस करना है फर्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो हमने एक मेथड अभी देखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज दे मोस्टली दे आर केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। So let us start by taking the preparation of this phosphine. तो आप phosphine को कैसे प्रिपेयर करते हो? You can prepare it from white phosphorus, that's P4. P4 को आपको aqueous sodium hydroxide के साथ ट्रीट करना है। अभी हमने इस रिएक्शन को देखा, जहाँ हमने देखा this 3 times. You get phosphine over there PH3 plus you get over there in HPO2 sodium biphosphate. This is 3 times. So this is one method of preparation जो हमने अभी अभी देखा। ना second method of preparation जो है, second method of preparation जो है, हम इसको prepare कर सकते हैं from phosphides. We can prepare it from alkali metal compounds. तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हम इनको फॉस्फाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम फॉस्फाइड्स। फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपाउंड लूंगा, कैल्शियम का फॉस्फाइड लूंगा, सो आई कैन राइट ओवर हियर Ca3P2. Now how can you remember the structure of this compound? You know that calcium is 2 plus, but we have 3 calcium ions, means you have to multiply this charge with 3, you get total of plus 6 charge. Now in this case nitrogen family phosphorus is -3 and we have 2 over here, multiply this with 2, you get -6, overall plus 6 and -6 get balanced, hence the structure becomes Ca3P2. This becomes the formula of the compound. तो अगर इन फॉस्फाइड्स को आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इफ यू विल हाइड्रोलाइज दीज फॉस्फाइड्स, व्हाट यू गेट ओवर हियर, यू गेट फॉस्फीन। तो आपको यहाँ से फॉस्फीन मिलता है एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट, आपको पता है अगर कोई भी कैल्शियम का कंपाउंड हो वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, यू विल गेट हाइड्रोक्साइड हियर। आपको यहाँ से हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, you can balance it over here। यहाँ पे 2 phosphorus atoms है, take it 2 times, तो यहाँ से हाइड्रोजन 3 2s are 6, तो आप इसको 6 टाइम्स लिख सकते हो। 6 2s are 12, 3 2s are 6 एंड यहाँ से 2, so this becomes 3 times, 3 times 3 2s are 6, 6 plus 6 is equal to 12. Similarly, we can react this phosphide, calcium phosphide, we can react with acids like HCl. अगर आप इसको HCl के साथ ट्रीट करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबिलिटी है निकलने की? Possibility is calcium will react with Cl, it will form calcium chloride, and the possibility is phosphorus will react with hydrogen, it's form phosphine. So this is the possibility. You can balance this reaction. So phosphorus atoms, you can take this 2. Now see, there are 3 calcium atoms. You can take this equal to 3. 3 2s are 6. This becomes equal to 6. So this is how you can balance this reaction. Now the most important thing is that you can prepare this phosphine from phosphides, metal phosphides, for example Ca3P2 calcium phosphide reacting with water, or you can treat calcium phosphide react it with acids, and in both the cases you get phosphine. Both the cases will result formation of phosphine. अगर आपका फॉस्फीन प्योर है, if pH3 is pure, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, then it is non-inflammable. If it is pure, then it is non-inflammable. तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है, it is non-inflammable. But it readily becomes flammable. Now this thing is important.
it becomes flammable when it comes in contact with what? P2H4, P2H4 or P4 vapors, P4 vapors. ऐसे हमने एक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है C2H4। इस C2H4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो CCH, C2H4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है। इस कंपाउंड को आप क्या नाम देते हो? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइलिन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइलिन ना। इसके बदले हमारे पास यहाँ पे फास्फोरस है, इसको हम कहेंगे फॉस्फोलिन, इथाइलिन फॉस्फाइलिन, इसको हम कहेंगे फॉस्फाइलिन। इसको कंपाउंड को हम फॉस्फाइलिन कंपाउंड कहते हैं ना। अब जो हमारा ये PH3 है, सिंस हमारे कंपाउंड में फास्फोरस बहुत ज्यादा था, इसलिए इट कैन रिएक्ट विद P2H4, इट कैन फॉर्म फ्लेमेबल कंपाउंड। तो यहाँ पे फ्लेमेबल कंपाउंड बनाना है, बनता है, मतलब इट बिकम्स इम्प्योर। अब इस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारे पास PH3 है और इसने यहाँ से एब्जॉर्ब किया है P2H4, यहाँ से P2H4, यहाँ से P4, यहाँ से P4, इन नाउ इट्स इम्प्योर। अगर ये इम्प्योर है, इफ दिस इज इम्प्योर, तो इस इम्प्योरिटी को आप कैसे निकालते हो? ये वाली इम्प्योरिटी जो है P2OH4, हाउ इट इज रिमूव्ड, दिस कैन बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। The impurity of P2H4 is removed by, so it is absorbed in Hi to form phosphonium iodide। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम एब्जॉर्ब करते हैं विद Hi। Hi से एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे फास्फोनियम आयोडाइड बनता है। नाउ दिस इज फास्फोनियम आयोडाइड, तो यहाँ से फास्फोनियम आयोडाइड बनता है। इस फास्फोनियम आयोडाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं विद KOH, देन इट फॉर्म्स, यहाँ पे क्या मिलेगा? Ki मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे Ki मिलता है, प्लस यहाँ पे PH3 मिलता है, प्लस यहाँ पे वाटर मिलता है। तो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ सी आई अगेन टेल यू अबाउट दिस थिंग। सी आई अगेन टेल यू अबाउट दिस थिंग। नाउ सी यू आर हियर, हमारे पास जो फॉस्फीन है, दिस फॉस्फीन इज इम्प्योर। व्हाई इट्स इम्प्योर? बिकॉज ये एब्जॉर्ब करता है P2H4 या ये एब्जॉर्ब करता है P4 पार्टिकल्स को। अब इस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ओवर हियर, फर्स्ट PH3 is impure because of which impurity? Because of P2H4। Now the second question is, अगर ये impure है, इस impurity को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे phenomenon of adsorption का यूज लेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे with Hi। We will treat it with Hi, या हम इसको यहाँ पे ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें? फास्फोनियम आयोन, फास्फोनियम आयोडाइड, दिस इज कॉल्ड फास्फोनियम आयोडाइड। Now this phosphonium iodide, अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा with KOH, aqueous KOH, now this is my aqueous KOH। Now what will happen? This iodide ion will attack K potassium, it will form Ki, it will form Ki over here। और मेरा जो ये फॉस्फीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा, इट विल रिएक्ट विद OH, इट विल फॉर्म वाटर, और यहाँ पे हमें PH3 रह जाएगा। नाउ दिस PH3 इज प्योर। This is very important, this PH3 is now pure। उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड, उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फॉस्फीन। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये जो हमारा फॉस्फीन है, इट इज अ कलरलेस गैस and its odor is, and its smell is rotten fish, rotten fish like smell, it smells like a rotten fish।
Now see, it is highly poisonous. This gas is poisonous also. Poisonous gas. अगर हम इसको किसी भी, अगर हम, since it is poisonous, अगर हम इसको किसी भी फॉस्फीन को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, we treat with oxidizing agent, for example HNO3, तो यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, तो यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, इट एक्सप्लोड्स। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, इट्स नॉट ओनली HNO3, आप किसी से भी ट्रीट करो, आप क्लोरीन से ट्रीट करो, आप ब्रोमीन वेपर से ट्रीट करो, इट एक्सप्लोड्स, तो यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, फास्फीन की सॉल्युबिलिटी वाटर में, वेदर इट इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, तो गाइस आप क्या कहोगे, इज इट सॉल्युबल इन वाटर? जैसे हमने देखा था ये एसिड इन नेचर है एंड दिस विल एक्ट एज अ बेस, तो यहाँ पे अगर ये एसिड है इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिलेगा PH4 प्लस माइनस, मींस इट इज सॉल्युबल इन वाटर। Solubility is because of its ion, because of its ionic nature, so it is soluble in water. तो यहाँ पे अगर इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हम यहाँ पे फास्फीन को लेते हैं, फास्फीन को ट्रीट करेंगे विद कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉल्ड बिल्यूविट्रॉल, दिस इज कॉल्ड बिल्यूविट्रॉल। तो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, इफ यू ट्रीट फास्फीन विद बिल्यूविट्रॉल व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड डू यू गेट? द कंपाउंड यू आर गेटिंग इज A एंड B। ना सी, जो हमारे पास यहाँ कॉपर के साथ जो नॉन मेटल है उसका एसिड बनेगा, यहाँ पे मीन सल्फर का एसिड बनेगा H2SO4, उसके बाद कॉपर और फास्फोरस रह जाएगा, विल गेट CO3P2 कॉपर फॉस्फाइड। तो यहाँ पे मेटल का फॉस्फाइड बनता है, नॉन मेटल का एसिड बनता है, मेटल का फॉस्फाइड, नॉन मेटल का एसिड। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रीट करोगे विद HgCl2 से, इसको आप फॉस्फीन के साथ ट्रीट करो, PH3 के साथ ट्रीट करो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेटल का फॉस्फाइड, दिस मेटल, इसका फॉस्फाइड, सिंस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, देयरफॉर वी विल गेट Hg3P2, और नॉन मेटल यहाँ पे क्लोरीन है, इसका एसिड, तो इसका एसिड पॉसिबल यहाँ पे HCl है। सिमिलरली अगर आप HBr के साथ ट्रीट करोगे इसको, इफ यू ट्रीट फॉस्फीन विद HBr, PH3 को आप ट्रीट करोगे विद HBr, नाउ सी यहाँ पे आपको मिलता है सिंपली, जैसे हमने फॉस्फीन को ट्रीट किया था विद KI या HI के साथ ट्रीट किया था, तो यहाँ पे क्या मिला था हमें? फास्फोनियम आयोडाइड PH4I, तो यहाँ पे मिलता है फास्फोनियम ब्रोमाइड PH4Br। तो इस रिएक्शन में फॉस्फीन एक्ट्स एज, ये H प्लस को लेता है, इट एक्ट्स एज एसिड एंड दिस विल एक्ट एज अ बेस, ऑल्दो दिस इज एन एसिड। तो यहाँ पे हमने देखा फॉस्फीन, इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस होते हैं, तो यूजेस में से क्वेश्चन आ सकता है, फॉस्फीन इज यूज्ड एज होल्मस सिग्नल, इट इज यूज्ड इन होल्मस सिग्नल, आपको डायरेक्ट याद रखना है होल्मस सिग्नल में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, एंड इट इज यूज्ड एज वार स्मोकर्स, वार स्मोकर में यूज होता है, दीज आर टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ फॉस्फीन। तो गाइस विल स्टॉप और लेक्चर हियर, कल हम डिस्कस करेंगे हैलाइड्स ऑफ, कल हम